अपना फोकस क्या है, हमें कौन से एनालाइज करने हैं, उसकी पोलैरिटी और ये सारी चीजों के बेसिस पे हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं. कॉलम इटसेल्फ नथिंग बट द स्टेशनरी फेज वी आर सिलेक्टिंग. Okay, so the question first is from question is from the paper chromatography. पेपर क्रोमेटोग्राफी में which of the following phase that we are using. Okay, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शन आपको इससे भी निकाल दोगे, because water is not in the solid phase. उसको सॉलिड करना है तो काफी कूल करके आइस करना पड़ेगा, वो तो एनीवे लॉजिक नहीं है. वाटर जैसे निकलेगा. सिमिलरली सिलिका जेल, सेलुलोज ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगेन सेम केस. दिस इज इररिलेवेंट ऑप्शन, टोटली टू ऑप्शंस. ऑप्शन आपके पास बचते ही दो ही, ओनली सिलिका जेल एंड सेल्यूलोज. पर अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी का बेसिक आप देखोगे तो पेपर इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ द, like name itself consists of the paper. Okay, और पेपर जो आप देखोगे, the paper is made up of the cellulose. We are not using any kind of the silica gel in the uh, paper chromatography. Okay, so अभी कौन से stationary phase हम use करते हैं, like what are the phases that we are using frequently in the stationary phase. Okay, so cellulose, that is very right answer. बट सेलुलोज एज इट इज डायरेक्टली यूज नहीं होता है. उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा प्रोसेस करके एक अच्छे क्वालिटी का पेपर उसको बनाते हैं. दैट पेपर इज कॉल्ड एज, एनीवन is having an idea what we call the paper? Yes, that is your Wortmann paper. Like ये Wortmann paper major frequently use होता है. That frequently used paper, Wortmann paper, is made up of what? Anyone has idea? Anyone is having any idea? Alpha cellulose, right? Cellulose में काफी सारे types है, but in that alpha cellulose. Okay, and the concentration is up to 99% of alpha cellulose and rest of the 1% of minerals. नहीं, nothing. Okay, so अभी वॉटमन पेपर के भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी सारे ग्रेड्स है अलग अलग. लाइक यू कैन सी द वॉटमन पेपर 31 ET ग्रेड, दैट वी कॉल द वॉटमन 31 ET ग्रेड. ओके, हर एक पेपर का अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से हमने वो पेपर के ग्रेड्स बनाए हैं. ओके, सो व्हाट इज दिस मेजर यूज ऑफ द वॉटमन 31 ET? This paper is preferable or preferred when there is a large difference in the RF value of the analytes. So I'll simple that, used when large difference in the RF value of analyte. So based on our focus or our application, we will select the grades of Wortmann paper. Another Wortmann papers, you can try other examples like Wortmann 20 or Macri-Nagel, MACH, MACHRE, Macri-Nagel 261 पेपर. अब ये दोनों ग्रेड का एप्लीकेशन क्या है? दिस इज मेजरली यूज्ड फॉर इन द केसेस वेयर देयर इज अ रन टाइम इज स्लो. मतलब सोल्यूट आपका स्लो सेपरेट हो रहा है और सॉल्वेंट भी उसके हिसाब से स्लोली ट्रैवल कर रहा है. तो इन दैट केस वी विल use grades like Wortmann 20 and Macri-Nagel 261. Okay, but again the advantage is like in this case, though it is a runtime is slow, but it will provide you the higher resolution. Okay, another grades of the Wortmann paper that like you can write on Edrol 208 or Wortmann 3mm. This 3mm is a specific application for 3mm. It is used in the preparative cases. Preparative मतलब जहाँ पे आपको large amount में separation करना है, higher quantities है. In that case, we will use Wortmann 3mm. So these are some of the general stationary phases that we are using in the paper chromatography. Okay, so accordingly, the option is right option is option C. Cellulose is the right answer for this question. Okay, let's move to the next one.
That is, which of the following is the stationary phase user? Okay, that is the answer. Okay. Next one, next question. Which of the following modification in HPLC improves the resolution but increases the analysis time? अभी यहाँ पे दो options उन्होंने दे, like दो hints या points है जो हमें focus करनी चाहिए. यहाँ पे improve resolution and increases the analysis time. Okay. Resolution improve हो रहा है but analysis time भी increase हो रहा है. अभी analysis time increase हो रहा है तो इसके लिए क्या क्या options हो सकते हैं? Okay, that we will see. First option is increasing the particle size of stationary phase. अभी मुझे बताओ, पार्टिकल साइज मैंने स्टेशनरी फेज का इंक्रीज किया तो डज इट इम्पैक्ट और डज इट इंप्रूव द रिजोल्यूशन? कोई चांस नहीं है, बिकॉज आपका पार्टिकल साइज जैसे बढ़ेगा कॉलम पैकिंग आपका थोड़ा वाइड हो जाएगा, उसमें से पोर्स जो है एपर्चर से वो ज्यादा वाइड रहेंगे, उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो सेपरेशन जो है सेम मॉलिक्यूल्स का या इनकी एफिनिटी सेम है, उनको सरफेस एरिया जो है इंटरेक्ट करने के लिए स्टेशनरी फेज के साथ वो ज्यादा मिलेगा नहीं. ओके, उसके हिसाब से क्या होगा, आपका रिजोल्यूशन या सेपरेशन होगा ही नहीं. सो दिस ऑप्शन is not correct one. Increasing the particle size is not the option to increase resolution. Second one क्या है, decreasing the column length. ओके अभी आपको पता है कि एचपीएलसी के क्रोमेटोग्राफी या कोई भी थ्योरीज पढ़ना चाहोगे, दो थ्योरीज वहां पे फेमस है. फर्स्ट वन इज द रेट थियरी एंड सेकंड वन इज द प्लेट थियरी. ओके, रेट एंड प्लेट थियरी के हिसाब से एक इमेजिनरी एक्सिस पे आपका सेपरेशन होता है हमेशा. ओके, दैट इमेजिनरी एक्सिस वी कॉल इट एज अ थ्योरेटिकल प्लेट्स, राइट. तो थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ानी है तो आपको क्या करना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, तो थ्योरेटिकल प्लेट्स में आपका दो चीजों से बनता है, लाइक एचटीपी, हाइट इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट्स, एंड कॉलम लेंथ. ये दो चीजें हैं, राइट. सो हाइट इक्वल इक्वल टू थ्योरेटिकल प्लेट्स मतलब क्या, दो थ्योरेटिकल प्लेट्स अगर वहां पे इमेजिनरी एक्सिस या सेपरेशन के प्लेस है कॉलम में वो बन रहा है, तो उसकी जितनी ज्यादा हाइट होगी उतना आपका कॉलम का लेंथ बढ़ेगा. जितनी ज्यादा कम आपकी मतलब जितनी कम हाइट होगी उतना कॉलम का लेंथ भी आपका कम हो जाएगा. बट यहाँ पे लेंथ के हिसाब से, लाइक टू इम्प्रूव द रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन बढ़ाना है तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी शुड गेट द मोर एंड मोर नंबर ऑफ द एच टीपी. जितनी ज्यादा एच टीपी या जितनी ज्यादा थ्योरेटिकल प्लेट्स रहेंगी उतना ज्यादा रिजोल्यूशन आपका बढ़ेगा. बट अगेन द थिंग इज दैट, लाइक आपका रिजोल्यूशन बढ़ेगा बट अगेन इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, योर कॉलम लेंथ विल आल्सो इंक्रीज अ लॉट. तो इसके लिए हमें करना क्या है, जितना टारगेट करो कि आपका एच टीपी जो हाइट इक्वल थ्योरेटिकल प्लेट कम हो जाए, उसके हिसाब से आपका कॉलम का लेंथ भी कम हो जाएगा बट रिजोल्यूशन भी आपका इंप्रूव होना चाहिए. तो यही दो केसेस है. इंप्रूव रिजोल्यूशन, तो रिजोल्यूशन आपका डिक्रीजिंग कॉलम लेंथ करके आपका यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर आपका अच्छे से अंदर थ्योरेटिकल प्लेट्स नहीं बन रहे तो आप कॉलम का लेंथ डिक्रीज नहीं कर सकते. ऑप्शन सी अगर आप देखोगे तो इंक्रीजिंग कॉलम लेंथ, यस. अगर आपका जितना बड़ा कॉलम लेंथ बनाओगे उतने हिसाब से आपका रिजोल्यूशन भी बढ़ेगा. बट अगेन एनालिसिस टाइम, यस ऑब्वियसली बढ़ेगा, बिकॉज रिटेंशन टाइम बढ़ेगा. रिटेंशन टाइम बढ़ेगा तो सैंपल जब आपने इंजेक्ट किया है वहां से उस सैंपल को डिटेक्टर को पहुंचने तक ज्यादा टाइम लगेगा, राइट. तो ज्यादा टाइम लगेगा तो एनालिसिस टाइम भी आपका बढ़ेगा. सो यस, इफ यू सी पहले दो ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए, उसमें कोई लॉजिक नहीं है. थर्ड ऑप्शन थोड़ा सा रिलेवेंट दिख रहा है. ओके, पर जस्ट फॉर वेरिफिकेशन जस्ट चेक वन फोर्थ ऑप्शन ऑल्सो, लाइक इंक्रीजिंग फ्लो रेट ऑफ द मोबाइल फेज. यस, दिस इज नॉट द केस. यहाँ पे फ्लो रेट बनेगा तो आपका रेजोल्यूशन इंप्रूव होने के कोई भी चांसेस नहीं है, एनालिसिस टाइम रिड्यूस होगा. so that is not correct option. So we'll see option C is the correct one. Okay, the increasing column length will improve the resolution as well as increases the analysis time. Okay, so let's move to the next question. That is, which of the following chromatography technique is based on the polarity differences? Okay, so option A is gel filtration chromatography, option B is ion exchange, option C is affinity, option D is thin layer chromatography. तो इसके लिए सबसे पहले let's understand what is gel filtration, what is ion exchange, what is affinity chromatography, and what is TLC. TLC तो आपको सबको पता है, right? Based on the आपका let's discuss on the gel filtration chromatography. Gel filtration chromatography क्या है? This is also called as the what? Anyone? Very important. Okay, this is also called as the size exclusion chromatography. यहाँ पे आपने हमें जो प्रिंसिपल दिया है दैट इज द पोलैरिटी के डिफरेंस, सबसे हमने निकालना है कि पोलैरिटी के हिसाब से क्या है. सेकंड वन इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, राइट. आयन एक्सचेंज में क्या है, इसका जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी की जो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे सेपरेट होते हैं, ये क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ द साइज एक्सक्लूजन और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज मॉलिक्यूल विल सेपरेट बेस्ड ऑन द साइज एंड
of the analyte, right? Polarity is not the principle. If you consider the ion exchange, just a minute, let me insert one more slide in this one. Yes, अगर ion exchange consider करोगे तो ion exchange chromatography is working on the based on the charge, right? Charge of the analyte, आपका charge क्या है analyte का, उसके हिसाब से exchangers में we are using the cation exchange and anion exchange, right? दोनों के केस में रेजिन्स हम यूज कर रहे हैं फॉर द सेपरेशन. ओके, सो कैटन एक्सचेंज अगर आप कंसिडर करोगे इन दैट केस जो रेजिन हमारा है लाइक स्टेशनरी फेज इज नेगेटिवली चार्ज्ड and it will bind to the opposite charge, like it will bind to positively charged analyte. Best example that you can take the carboxyl cellulose is again cation exchanger, और सल्फेट resins जो भी सारे हैं, sulfated resins are also the cation. If you consider the anion exchange, anion exchange topic totally reverse है, like it is a positively charged resin and binds to the it binds to the negatively charged molecules. Negatively charged molecules, right? Example, best example of this resin is quaternary ammonium resins. Okay. If you consider the third option that is provided is affinity chromatography. If you consider the affinity chromatography में आपका जो सेपरेशन का प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज स्पेसिफिक इंटरेक्शन between the ligand, or you can say the stationary phase, and the target molecule. Okay, and if you see the fourth option, that is a thin layer chromatography, the TLC का जो आपका separation का principle है, that is based on the polarity, right? So polarity के basis पे gel filtration is size के basis पे होता है, ion exchange आपके charge के basis पे, affinity specific interaction के basis पे. So तीनों options, option A, B and C is not suitable option. Option fourth one, TLC is the right answer for the separation principle, that is nothing but the polarity. Okay, let's move to the next question. Like in reverse phase HPLC, the stationary phase is generally, अभी ये भी काफी बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान में रखो. रिवर्स फेज बनाया क्यों है पहले? मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, ये जो एनालाइट्स आपके हैं, दोज एनालाइट्स और ड्रग्स और केमिकल्स आप बोलते दैट दोज आर इन द पोलर इन नेचर. अभी पहले क्या था, सबसे पहले आपका क्रोमेटोग्राफी चालू हुआ तो उस केस में डेवलपमेंट जैसे जैसे होता गया, सिलिका आपका वहां पे आता गया. ओके, तो सिलिका इज ऑलरेडी द पोलर. ओके, तो सिलिका जब स्टेशनरी फेज करके यूज कर रहे हो तो पोलर कंपाउंड बाहर निकालने में लेट हो रहा है. मतलब फर्स्टली आप इनिशियली आप पोलर कंपाउंड बाहर नहीं निकाल सकते. उसके लिए क्या किया, इस सिलिका का मॉडिफिकेशन करके उसको रिवर्स बना दिया. मतलब उसकी जो पोलैरिटी है पोलर से नॉन पोलर बना दिया. ओके, अभी नॉन पोलर स्टेशनरी फेज बन गया तो उसके साथ आप मोबाइल फेज जो है वो मोबाइल फेज आप पोलर यूज कर सकते हो. जैसे ही पोलर यूज किया तो अफिनिटी पोलर कंपाउंड की मोबाइल फेज के साथ ज्यादा बढ़ेगी, तो इसके हिसाब से ये जो कंपाउंड्स आपके हैं वो डिटेक्टर तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे. ओके, तो इसी का प्रिंसिपल है या इसी का इंपॉर्टेंस ध्यान में रखते हुए आपने रिवर्स फेज को
डेवलप किया है। तो हमेशा ध्यान में रखो, वेन एवर यू सी द रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी, ये काफी बेसिक है। उसके इसमें आपका जो, जस्ट जस्ट मिनट, लेट मी इरेज दिस। हाँ, इस केस में नॉन पोलर में जो आपका, सॉरी, रिवर्स फेज में जो आपका मोबाइल फेज रहेगा, वो मोबाइल फेज और आपका स्टेशनरी फेज आपको हमेशा ध्यान में रखना है, दैट इज टोटली different from the normal phase. So I'll just simple write one very small table. You first write is normal HPLC, and second one you consider here is the reverse phase. Okay, यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले स्टेशनरी फेज कौन सा है, सेकंड विल राइट ऑफ द मोबाइल फेज। ओके, सो यस, नॉर्मल फेज में जो आपका स्टेशनरी फेज है वो सिली का है, दैट इज पोलर इन नेचर। तो पोलर के साथ आप मोबाइल फेज जो यूज करोगे दैट विल बी नॉन पोलर। इससे सबसे पहले जो मोबाइल मॉलिक्यूल सबसे पहले बाहर निकलने वाले या डिटेक्टर तक पहुंचने वाले, दोज विल बी द नॉन पोलर, राइट। सो रिवर्स फेज कंसिडर करोगे तो इट इज अपोजिट, लाइक योर स्टेशनरी फेज इज नॉन पोलर एंड योर मोबाइल फेज इज द पोलर। तो मोबाइल फेज पोलर है तो सबसे पहले डिटेक्टर जो पहुंचने वाले मॉलिक्यूल्स है वो भी पोलर रहेंगे। ओके, एम्फीफिलिक इज नॉट द ऑप्शन, न्यूट्रल इज आल्सो नॉट द ऑप्शन। सो यस, स्टेशनरी फेज इन फेज इज non-port option is correct. Let's next. Size exclusion chromatic also. We have question we discussed. Yeah, size exclusion chromatic also the not not a paper chromatic or not a chromatic. Filtration copy. That answer. For the size, that's about the question. Right? ये भी है ऑप्शन वन, सेल फिल्ट्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज द साइज फिल्ट्रेशन। हमेशा में रखो, अगर सेल फिल्ट्रेशन तो इसका बेसिक कन्वर्ट इसके क्या होता है, सिमिलर सिमिलर है या so yes, question number, we were in the discussion of we were discussing the question number 5. So yes, size exclusion chromatography is also called as the gel filtration chromatography. Okay, let's move to the next one, question number 6. Which chromatography technique is used for the protein purification based on the molecular weight? Again, molecular weight के basis पे आपको निकालना है। प्रोटीन है, so protein are already the high molecular weight compounds. मॉलिक्यूलर वेट जैसा उनका ज्यादा है उसके हिसाब से उनकी साइज भी हमेशा ज्यादा होती है। तो गैस क्रोमेटोग्राफी ऑब्वियसली इज नॉट द ऑप्शन, राइट, क्योंकि वहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी में आपको सैंपल्स वेपराइज करके काफी सारे छोटे कॉलम से उसको पास करने, सो दैट इज नॉट द राइट आंसर। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन आप पेपर क्रोमेटोग्राफी से भी नहीं कर सकते, वहाँ पे अमीनो एसिड्स अगर बेसिकली सेपरेट करने हैं जस्ट फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन दैट केस यू कैन यूज द पेपर क्रोमेटोग्राफी, बट प्रोटीन्स के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो दो ऑप्शंस आपके पास है, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी एंड जेल फिल्ट्रेशन। अगेन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है आपकी स्पेसिफिक बाइंडिंग की हिसाब से काम करती है, तो दिस इज आल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। तीन ऑप्शन आपने निकाल दिया तो यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर, दैट इज जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। तो यही उसका एप्लीकेशन है। जो भी हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड है, जो बिगर साइज वाले मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स है, ये सारे कंपाउंड्स आपको सेपरेट करने हैं irrespective of the its polarity or charge or anything. In that case, this is the best option, that you will go with the gel filtration chromatography. So right answer is gel filtration chromatography, option C. Okay, now let's move to the next one. Which of the following, question number 7, which of the following is used as a detector in the HPLC? Okay, तो HPLC का डिटेक्टर अगर आप समझना चाहोगे तो HPLC का डिटेक्टर है, let me introduce one more slide in this presentation. Yes, so जो डिटेक्टर्स आपके HPLC पे यूज होते हैं, those detectors are basically classified into the two categories. First one is the bulk property and second one is the solute property. Solute property मतलब क्या, जो आपके एनालिट के हिसाब से काम करेंगे, those will be the solute property. Bulk property मतलब जो आपके
मोबाइल फेज को रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसे वाले जो सारे आपके डिटेक्टर से, दैट विल बी कॉल्ड एज द bulk property. Okay, I'll write it as respond to the property of analyte, and the bulk property will respond to the property of the mobile phase. Okay, or response to the mobile phase. So examples अगर आप consider करोगे, when you see the bulk property, it includes the refractive index detector, or we call it the RI detector, then dielectric constant detector, then density detector. If you consider the solid property, the examples are UV absorbance detector, fluorescence detector, or diffusion current detector. The basically will not enter into the deep. Just for example purpose, we are covering it. Okay. So ये आपके बेसिक एग्जांपल्स है यूवी यूवी में या एचपीएलसी पे जो डिटेक्टर यूज होते हैं उसके. ओके, सो if you see the option which of the following is the detector in the HPLC, flame ion detector आपका जीसी का डिटेक्टर, that is not we are using. None of the above option तो में से भी नहीं है. UV visible detector we can see here because it is a solid property detector that we are covering. Okay, just UV absorbance is a solid property detector. So electron capture detector is also not the part of the HPLC detectors. So option A, that is UV visible detector, is the right answer for this question. Okay, let's move to the next question. That is, which type of pump is commonly used in the HPLC? Okay, तो अभी HPLC के जो पंप्स हम यूज करते हैं उसका पर्पस क्या है? जो मोबाइल फेज आपकी हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसको कॉलम में अंदर लेके जाने का काम आपका प्रेशर जो आपका प्रोवाइड करता है वो आपका पंप प्रोवाइड करता है, राइट? सो पंप्स कौन से हम यूज करते हैं इन द एचपीएलसी? सो विल जस्ट एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ पंप्स that we are using. The first one is isocratic pump. Isocratic and gradient हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज आइसोक्रेटिक एडिशन, व्हाट इज ग्रेडियंट. इसमें क्या है, आइसोक्रेटिक में आपका जो डिलीवरी होता है दैट इज अ कांस्टेंट कंपोजिशन. सो इट हेल्प्स टू डिलीवर द कांस्टेंट कंपोजिशन. मोबाइल फेज का जो रेशो है, जो पोलैरिटी है, वो इस केस में चेंज नहीं होती है. इफ यू कंसीडर द ग्रेडियंट पंप, ग्रेडियंट में आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो. It is again having two types. First one is a high pressure gradient, and second one is a low pressure gradient. Third type of pump that we are using is a reciprocating pump or reciprocating piston pump. It is having the again two types. The first one is single piston, and second one is the dual piston. Another type of pump that we are using is a syringe pump. And one more is a peristaltic pump. Actually, it contains the rotating rollers. Peristaltic pump हम मोस्ट ऑफ द केसेस में एक और जगह पे यूज करते हैं इन द बाइंडर सॉल्यूशन प्रिपरेशन, राइट? और यू कैन से नॉट बाइंडर सॉल्यूशन कोटिंग के केस में हम काफी यूज करते हैं, टैबलेट कोटिंग में. स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग रहता है. बस ये जो आपके मेजर पंप्स है दैट इज आइसोक्रेटिक, ग्रेडियंट, रेसिप्रोकेटिंग, सीरीज एंड पेरिस्टाल्टिक पंप. इनमें जो आपका मोस्ट ऑफ द वाइडली यूज्ड होता है दैट इज योर रेसिप्रोकेटिंग पंप. ओके, सो यस, पेरिस्टाल्टिक
is not we are using as a common pump. Centrifugal भी नहीं, syringe भी नहीं आपका. Reciprocating pump, that is a pump that we are using generally. Okay, so option B is the right option. Let's move to the question number 9. Which gas is commonly used as carrier gas in the chromatography? अब ये तो काफी basic question है. The answer is directly we can go with the helium. Oxygen we are not using. Carbon dioxide we are not using. And chlorine also we are not using. क्योंकि अगर इसके प्रॉपर्टीज काफी सारे हैं हेलियम के, बिकॉज हेलियम इज अगेन इनर्ट गैस, कोई इंटरेक्शन आपके सॉल्वेंट के साथ करता नहीं है, सॉल्वेंट के साथ भी नहीं करता है, एज वेल एज इट इज नॉट इंटरेक्टिंग विद एनी काइंड ऑफ सोल्यूट्स. ओके, इवन नॉट इंटरेक्टिंग विद द स्टेशनरी फेज, सो कॉलम का जो लाइफ है दैट लाइफ इज आल्सो increasing. So by considering the other options like oxygen we are not using because it is not inert, it may react with your analyte or mobile phase and आपका एनालिसिस में वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है. सो बाकी तीनों भी गैस कंसिडर करो तो रिएक्टिव है. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. हीलियम इज द राइट आंसर. Yes, in the next question. RF value is, RF stands for factor. अभी RF value हम कहाँ पे यूज करते हैं? We are majorly in case of the TLC. RF क्या है? सपोज कंसीडर करो दिस इज माय TL सेट. यहाँ पे मैंने स्पॉट किया है. ओके, यहाँ से और ये स्पॉटिंग करने के बाद मैंने इसको बीकर में कर किया है फॉर द रिजोल्यूशन पर्पस. तो मोबाइल फेज आपकी यहाँ प्रेजेंट है बीकर में, आपने स्पॉट किए. तो इसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम बाद ये आपका सॉल्वेंट कितने डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है. यस, सॉल्वेंट कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया. उसका फॉर्मूला क्या है? It is simply RF value is a distance divided by the distance traveled by phase. Okay, so yes, so what are the options? Option A is distance traveled by the compound at its Mach point of maximum. Yes, this is not the option because सिर्फ compound का distance हम यहाँ पे consider नहीं करते. Second, distance traveled by standard, no way. Option C is the distance traveled by the solvent traveled. No, that is also not option. Option D, we are seeing like distance traveled by the compound divided by the distance traveled by the solvent. So option D is the right answer for this question. Okay. Let's move to the next question. Which of the following technique is used in the purification of the monoclonal antibodies? Okay. Option is again this is application base है. Monoclonal antibodies के लिए आप कौन सा यूज करोगे? जैसे कि हमने देखा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नॉट पॉसिबल क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का अगेन इंट्रैक्शन स्पेसिफिक सेपरेशन यहाँ पे होता है. मतलब आपका लिगैंड है और आपका जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल इंटरेक्टिव उसके बेसिस पे. तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इज आल्सो नॉट द ऑप्शन. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वैसे निकलता है. ऑप्शन दो होते हैं एफिनिटी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी. ओके, सो पेपर इज आल्सो नॉट एन ऑप्शन. सो सिंपली विदाउट लाइक कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत भी नहीं है. आप ऑप्शन ये निकाल दोगे तो यू विल गेट द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी. एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में आपका कैसा है, वहां पे स्पेसिफिकली इंट्रैक्शन के बेसिस पे आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो
सेपरेट होते हैं. ऑप्शन ए एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी इज द राइट आंसर. ओके. Question number 12. What is an eluent? Option A is the liquid solution. Option B is a liquid solution that result from option C is it is solvent that is used for the separation of adsorbed material from the stationary phase, and option D is the none of the above. So what is the answer? It is liquid solution. Yes, it is liquid solution, but ये सिर्फ liquid solution, कौन सा भी liquid solution आपका eluent नहीं होता है. Okay, liquid solution में water भी है, so it does not mean my water can be called as the eluent. So option A is the not right answer. If you see the B option, it is the liquid solution that is a result from the elution. That is also not the answer. Eluent का definition अच्छे से option C बताता है. None of the above is also not the answer. It is a solvent that is used for the separation of the adsorbed material from the stationary phase. Okay, जो आपने solute एंटर किया है उसको सेपरेट करने के लिए जो सॉल्वेंट हम यूज करेंगे या जो सिस्टम हम यूज करेंगे उसी को हम जो मोबाइल फेज बोलते हैं. दैट मोबाइल फेज इज आल्सो कॉल्ड एज द इल्यूएंट. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, let's move to the next question. Which of the following cannot be used as an adsorbent in the column adsorption chromatography? Column adsorption chromatography, or we can say column chromatography. ओके, तो अभी इसके लिए कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कौन से नॉर्मली या बेसिकली जो फेजेस है वो या स्टेशनरी फेजेस है यूज करते हैं. दैट वी विल कवर अकॉर्डिंगली विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर. अगर आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी कंसीडर करोगे तो उसमें जो स्टेशनरी फेजेस हम वाइड यूज करते हैं ऑब्वियसली. सबसे पहले वाइड यूज वाला जो आपका मटेरियल दैट इज SiO2, इट इज सिलिका जेल. बट अपार्ट फ्रॉम दिस सिलिका जेल और काफी सारे मटेरियल्स है जो हम यूज करते हैं. बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन बाय केस बेसिस में अलग अलग हो सकता है. सो अनदर स्टेशनरी फेज दैट वी आर यूजिंग इज alumina, Al2O3. Then we also use the activated carbon, or we also call it the charcoal. Then magnesium silicate can be also used. Then calcium carbonate. Then zeolites. Then cellulose. Most of the cases में alpha use हो सकता है. Then starch और calcium phosphate is also an available option. These are the stationary phase, which is also called as the hydroxyapatite can be used. Okay, अगर ऑप्शन यहाँ पे देखोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हम यूज कर सकते हैं, सिलिका जेल ऑल्सो यूज हो सकता है, एक्टिवेट एल्यूमिना हो सकता है, बट पोटेशियम परमैंगनेट ये आपका कहीं पे भी हम यूज नहीं करते. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट we cannot be used as a stationary phase in the column adsorption chromatography. Okay, let's move to the next question. Question number 14. In chromatography, which of the following can be mobile phase? Okay, मतलब और मोबाइल फेज बी मेड अप ऑफ. ओके, तो क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है कि या HPLC है कि GC है कि TLC है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी है. सो जनरल क्रोमेटोग्राफी अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या हो सकता है वहां पे आपका सॉलिड तो कहीं पे भी आप एज अ मोबाइल फेज यूज नहीं कर सकते हो. तो जहां पे सॉलिड है वो ऑप्शन निकल गया. लाइक ऑप्शन ए इज नॉट नॉट एन ऑप्शन. गैस ओनली दिया है. क्या दिया है क्या यहाँ पे अगर स्पेसिफिकली GC मेंशन करते हैं तो दैट माइट बी द राइट आंसर, बट ऐसा कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है. लिक्विड ओनली भी नहीं दिया है बिकॉज यहाँ पे कोई HPLC या TLC या कोई स्पेसिफिक क्रोमेटोग्राफी का मेंशन नहीं किया है. तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट सुटेबल. ऑप्शन बी अगर आप देखोगे तो लिक्विड और गैस ये दोनों type of molecules can be used in the any kind of chromatography like HPLC, GC, TLC or paper. So option B is the right answer for this question. Liquid or gas can be used for the as a mobile phase. Okay, let's move to the next question. Question number 15.
Which of the following types of chromatography involves the process where mobile phase moves through the stationary phase by influence of the gravity और कैपिलरी एक्शन? क्वेश्चन ऐसे दिया है कि कौन सा इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जहां पे आपका मोबाइल फेज जो है वो आपके ग्रेविटी या कैपिलरी एक्शन के हिसाब से मूव करता है? अगर ऑप्शन देखोगे तो पहले है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है गैस क्रोमेटोग्राफी एंड फोर्थ वन इज प्लेनर क्रोमेटोग्राफी। ओके, अगर आप कंसिडर करोगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यहाँ पे आपका कॉलम होता है, कॉलम के बेसिस पे आपको मोबाइल फेज जो है वो ग्रेविटी के हिसाब से निकल सकता है, राइट? दैट इज वन ऑप्शन, बट कैपिलरी एक्शन के हिसाब से वो नहीं जा रहा है। ओके, ऑप्शन अगर कंसिडर करो कि हाई प्रेशर, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन दिया है कि प्रेशर ही आपका वहां पे मोबाइल फेज को ट्रेवल करने में हेल्प कर रहा है, सो दैट इज नॉट ऑल्सो ऑप्शन। गैस, ऑप्शन सी इज गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में भी हम हमें पंप यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी आपका गैस में भी आपका मोबाइल फेज जो है मोबाइल फेज गैस है, तो उस केसेस में ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन डी अगर कंसिडर करो तो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, यस, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में आपका कैपिलरी एक्शन प्लस ग्रेविटी दोनों की हेल्प से without applying any external force or any external pressure, the mobile phase will be traveled. Okay, so option A is also not suitable. ऑप्शन ए में एक ऑप्शन हो रहा है पर दूसरा ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है। बट अगर आप प्लेनर कंसिडर करोगे तो प्लेनर में आपका दोनों कैपिलरी एज वेल एज द और ग्रेविटी आपका यहाँ पे मैच होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द दिस क्वेश्चन। Let's go to the next question. Question number 16. Which of the following is not true about the HPLC और हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी? बोला है नॉट ट्रू, ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू। फर्स्ट वन, इट रिक्वायर्स द हाई प्रेशर फॉर द सेपरेशन ऑफ स्पेसीज। बराबर, हाई प्रेशर देना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, सो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, सॉरी, ऑप्शन बी इज द देयर इज अ नीड टू वेपराइज द सैंपल्स। अभी ऐसा तो आपको कहीं पे नहीं दिख रहा है कि आपको सैंपल को कोई वेपराइज करने की जरूरत है। ये कहाँ पे होती है? जीसी में होती है। ओके, लेट्स सी अदर ऑप्शंस। इट इज परफॉर्म इन द कॉलम्स, दैट इज आल्सो राइट ऑप्शन, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन इज इट हैज द हाई सेंसिटिविटी, राइट? काफी कम अमाउंट में भी कॉन्सेंट्रेशंस में आपके एनालाइट्स हो गए तो भी वो आइडेंटिफाई कर सकता है, सेपरेट उसको करने की कैपेबिलिटी आपके एचपीएलसी एज वेल एज यूपीएलसी में भी है। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। तीन ट्रू आपको मिल गए। सेंसिटिविटी ज्यादा है, कॉलम के हेल्प से हम सेपरेट करते हैं, और हाई प्रेशर भी लगता है, तो तीन ऑप्शन निकल गए। तो नॉट ट्रू क्या है? इट इज नीड टू वेपराइज। ओके, कोई नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let's move to the question number 17. Which chromatography method is used for the separation of the amino acid? Okay, इसके पहले हमने सेम क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस किया था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटीन्स, राइट? प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा टेक्निक आप यूज करते हो? सिमिलरली एनालाइट्स, अगर आपका अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड के लिए आप एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो अमीनो एसिड्स के लिए अगर ऑप्शन देखोगे तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, पेपर एंड साइज एक्सक्लूजन। साइज एक्सक्लूजन की अमीनो एसिड अगर इंडिविजुअल कंसिडर करोगे तो उसकी इतनी बड़ी मॉलिक्यूलर साइज नहीं है, शेप्स ज्यादा बड़े नहीं है, तो साइज एक्सक्लूजन यहाँ पे सूट नहीं होगा। गैस क्रोमेटोग्राफी कहीं पे हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि अमीनो एसिड अगर आप वोलेटाइल या उसको वेपराइज करोगे तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, तो दैट इज आल्सो नॉट द सुटेबल ऑप्शन। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, यहाँ पे कोई इंटरेक्शन का सवाल नहीं है, सो ऑप्शन ए इज आल्सो नॉट सुटेबल। बट इफ यू कंसीडर द पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी के साथ आप अल्फा सेलुलर्स के साथ अमीनो एसिड की जो एफिनिटी है उसके हिसाब से वी कैन यूज द पेपर क्रोमेटोग्राफी एज अ बेस्ट चॉइस टू सेपरेट द अमीनो एसिड्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर for this question. Let's move to the question number 18. Which type of the column is commonly used in the GC or gas chromatography? Option A is the open tubular, option B is the capillary column, option C is the packed column, and option D is the paper column. पेपर कॉलम इज नथिंग, ऐसा कुछ होता नहीं पेपर कॉलम, ऑप्शन डी ऐसे निकल गया। अभी तीन ऑप्शंस है। ओके, उसके पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉलम्स दैट वी आर यूजिंग इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो देखो, दो मेजर टाइप्स के कॉलम होते हैं इन द गैस क्रोमेटोग्राफी। द फर्स्ट वन इज द पैक्ड कॉलम्स,
इस जो मेजर स्टेशनरी फेज आपको यूज होता है दैट इज मॉलिक्यूलर और सिलिका. Another category of the type of column is a capillary column, or which is also called as the open tubular column. इसके तीन मेजर्स है. फर्स्ट called W chord, one is S, third one is a support coated tubular column. W chord is the wall coated open tubular, wall coated. ओके सो दिस वॉल जो आपका है वो कॉर्क का इनर वॉल है और इस इनर वॉल पे कोट होते हैं. अब ये कोटिंग जो होता है मोस्ट ऑफ द केसेस सो अगेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक है. यस अगर कंसीडर करें इट इज सिंपल सपोर्ट कोटेड. This is the phase is supported on the solid or stationary phase is supported on the again or solid adsorbed or solid support. So, इस केसेस में अगर आप देखो एप्लीकेशन स्पेसिफिक जाता है. और जनरल यूज के अगर तो हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं. सो इसी के हिसाब से अगर ऑप्शन देखोगे तो कैपिलरी कॉलम कॉलम ही आंसर है, सेम ही बोलते हैं उसको. So this also option A and B is not right option. Option C is the parallel column is the right answer for this question. Okay, let's move to question number 19. In chromatographic separation, which of the following is the most appropriate for qualitative analysis of the substance? क्वेश्चन पूछा है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जहाँ जिस वजह की है उसको. Just a minute, let me share my screen once again. तो ये फैक्टर समझते हैं कि क्या है पहले. दिस इज जस्ट प्लीज करेक्ट इट. दिस इज टेलिंग फैक्टर. टेलिंग फैक्टर आपका क्या बताता है आपका पिक का सुपेरियरिटी या बेस्ट पिक या बेस्ट सेपरेशन. अगर वो दोनों साइड से सिमिलर सिमिलर इक्वल है तो हम बोलेंगे कि उसका रिजोल्यूशन है जो अच्छे से. टेलिंग फैक्टर मतलब क्या आपका पिक को ऐसा लास्ट में टेल दिखेगा. ओके सो इसका हेल्प आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में कोई नहीं दिखेगा. इसका अगर ऐसा टेलिंग दिख रहा है इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विद द रिस्पेक्ट टू द रिजोल्यूशन या अच्छे से सेपरेशन हुआ नहीं है. सेकंड वन इज कैपेसिटी फैक्टर. कैपेसिटी फैक्टर मतलब क्या है आपका जो सोल्यूट है वो सोल्यूट एंड मोबाइल फेज इनमें एफिनिटी कैसा है लाइक नॉट विद द मोबाइल फेज बट आपका जो सोल्यूट आपने दिया है वो सोल्यूट किसके साथ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. मोबाइल फेज के साथ अच्छे से घुल मिल रहा है या आपके स्टेशनरी फेज के साथ अच्छे से वो इंटरेक्ट कर रहा है. तो उसकी एफिनिटी किसको है वेदर इट इज फॉर द मोबाइल फेज और वेदर इट इज फॉर स्टेशनरी फेज. दैट वी कॉल एज द कैपेसिटी फैक्टर. कैपेसिटी फैक्टर काफी अच्छे से हम सिंपल फॉर्मूला है कैपेसिटी फैक्टर का. के डैश इज टी आर माइनस टी एम अपॉन टी एम.
T stands for the retention time. ओके, तो ये इस केस से आपका सोल्यूट मोबाइल फेज के साथ जा रहा है या स्टेशनरी फेज के साथ जा रहा है, इसके हिसाब से आपको क्वालिटी एनालिसिस का कोई आइडिया नहीं मिलेगा। रिटेंशन टाइम एंड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब क्या है, दोनों पीक या दो अगर क्लोजली रिलेटिंग कंपाउंड्स है तो उनमें से सेपरेशन हुआ है कि नहीं है, ये आपको कॉलम का कैपेसिटी या एफिशिएंसी दिखाता है। तो दिस इज आल्सो नॉट द राइट ऑप्शन। रिजोल्यूशन आपका यहाँ पे नहीं आएगा, कैपेसिटी फैक्टर इज आल्सो नॉट ऑप्शन एंड टेलिंग फैक्टर इज आल्सो नॉट। रिटेंशन टाइम के बेसिस पे आप बता सकते हो कि उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस कितना है, कैसे वो रिलीज हो रहा है कि या सिस्टम के साथ रह रहा है या मोबाइल के साथ बाहर आ रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस question. Okay, let's move to the next one. Ion exchange chromatography is based on, option A is electrostatic attraction, option B is the electrical mobility of ionic species, option C is the partition chromatography, and adsorption chromatography is option D. तो option B and C इसके बेसिस पे ion exchange आपकी बनती नहीं है, so option C and D वैसे ही निकल जाते हैं। option A and option B electrostatic attraction यहाँ पे कोई है नहीं है। ओके अगर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन 3 में भी हमने डिस्कस किया, उसके हिसाब से यहाँ पे हम कैटायंस एंड अनायंस यूज करते हैं, उसके हिसाब से आपके जो स्पेसिस है वो स्पेसिस मूव करते हैं, राइट। सो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ द आयनिक स्पेसिस इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21, which of the following is an example of bulk property or general detector in the HPLC? ये हमने अभी प्रीवियस डिस्कशन में डिस्कस किया है। Okay, let me check the question number. Question number 7 is the question. यहाँ पे हमने पार्ट्स डिस्कस किया था। That this one bulk property and solid property कौन से है? Okay, that question in the discussion only we have covered this answer. So yes, which of the following is the example of bulk property detector? So bulk property हमने देखे थे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिटेक्टर एंड डेंसिटी डिटेक्टर ये ऑप्शन थे। फ्लोरोसेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड यूविजिबल आर योर सोलिड प्रॉपर्टी, आपके सोलिड के हिसाब से वो सोलिड की प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो ऑप्शन डी, देन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर। आपके बल्क प्रॉपर्टी का जो आंसर है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटेक्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर सेपरेशन इन द एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? कौन सा फोर्स है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस नहीं, बिकॉज आपका मोबाइल फेज या इनमें से कोई एक, स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज से कोई एक आपका नॉन पोलर होना चाहिए। नॉन पोलर इज अगेन रिप्रेजेंटेटिव यूर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, सो दैट इज नॉट राइट आंसर। कोवेलेंट बॉन्डिंग अगर हो गया तो कभी भी आपका मॉलिक्यूल जो है वो स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज जिसके साथ भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहा है उससे वो कभी सेपरेट नहीं होगा। So option C is also not the right answer. Magnetic interaction से वहां पे कोई होती नहीं है because there is no electrical field involved. So option B, van der Waals forces is the right answer for this question. Okay, let's move to the next one. Question number 23. In ion exchange chromatography, cation exchangers have which charge? I think this point also we have covered previously. I think question number 3 में हमने कवर किया था कि आयन एक्सचेंजर्स में आपके कैटायन और आयन एक्सचेंजर दो होते हैं। तो कैटायन एक्सचेंजर अगर कंसीडर करोगे तो उसमें जो रेजिन है या स्टेशनरी फेज है, the stationary phase is having the negative charge for the cation. Okay, so उसी क्वेश्चन का बेसिस हम डिस्कस करके यहाँ पे वो ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन तो वैसे निकल जाएंगे, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल कोई भी ऑप्शन नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव इज द ऑप्शन दैट इज अवेलेबल नाउ। दो तो हमने वैसे भी एलिमेंट कर दिए। So yes, based on the discussion that is covered in the question number 3, the ion exchange chromatography, cation exchange is having the negative charge and it will bind or it will interact with the positively charged molecule. Right, so option B is the right answer for this question.
Let's move to the next question number 24. In size exclusion chromatography, solute molecules are separated based on. ये भी क्वेश्चन हमने काफी दो तीन प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है. सो मॉलिक्यूलर फेज इज नॉट द राइट आंसर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई यहाँ पे रूल्स नहीं है, नॉट इवन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन. ओके, आपका जो साइज एक्सक्लूजन है that is based on the geometry and size. So option A is the right answer for this question. Let's move to the question number 25. What is the primary advantage of using gradient dilution in the HPLC over isocratic? Isocratic मतलब क्या है? वहां पे आप मोबाइल फेज की पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते हो. अगर मल्टीपल पोलैरिटी के या नॉन पोलैरिटी के सोल्यूट्स या एनालाइट आपके पास है, या उसको आपको सबसे पहले बाहर निकलना है, उस केस के लिए आइसोक्रेटिक इज नॉट अ सुटेबल ऑप्शन. ग्रेडियंट में क्या होगा? ग्रेडियंट आप चेंज करोगे तो आपकी मोबाइल फेज भी आप पहले पूरा का पूरा पोलर दे सकते हो. जैसे जैसे आप उसको कंपोजिशन चेंज करते जाओगे तो उस केस में वो पोलर का नॉन पोलर, मिड पोलर, स्लो पोलर ऐसे हो सकता है. राइट. सो इसी के लिए ऑप्शन ए अगर आप देखोगे तो इट इज अ बेटर सेपरेशन ऑफ द लेट यूनिटिंग कंपाउंड्स. यस, दैट इज ऑप्शन आई कैन सी द राइट ऑप्शन. ऑप्शन बी क्या दिया है? लेट्स सी. शॉर्टर रिटेंशन टाइम फॉर ऑल एनालाइट्स. नहीं, अगर आप ग्रेडियंट रिलेशन करोगे तो शॉर्टर रिटेंशन टाइम नहीं है. ऑप्शन सी रिड्यूस्ड सॉल्वेंट कंजम्पशन, that is also not the right option. Should be increase the detector sensitivity. This is also not the sensitivity पे कोई impact नहीं है. Either you use isocratic or either you use the gradient dilution. वहाँ पे कोई impact नहीं है. That is sensitivity will remain as it is. Okay, so option A, better separation of eluting compounds or late eluting compounds is the right option for this question. So option A is the correct one. Let's move to the next one. That is, in gas chromatography, which of the following factor determines the retention time of the compound? कौन से पैरामीटर्स है जो आपके डिटेंशन टाइम को डिटेक्ट करेंगे? तो ऑप्शन इज सैंपल इंजेक्शन वॉल्यूम, ऑप्शन बी डिटेक्टर टाइप, ऑप्शन सी कैरियर गैस फ्लो रेट, एंड ऑप्शन डी इज कॉलम टेम्परेचर. तो अभी देखो, सबसे पहले तो रिटेंशन टाइम आपका कब समझेगा? जब आपका सैंपल इंजेक्ट करने के बाद डिटेक्टर तक पहुंचने वाला है. एक बार वो पहुंच गया तो उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, वो आपका रिटेंशन टाइम है. तो उसके लिए डिटेक्टर कौन सा भी हो, उसके टाइप से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो वैसे ऑप्शन ये निकल गया. अब यहाँ पे वॉल्यूम इंजेक्शन का कितना है, कैरियर गैस का फ्लो रेट क्या है, और आपका कॉलम का टेम्परेचर क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा. कैरियर गैस का फ्लो रेट अगर ज्यादा है, और सपोज कंसिडर करो कि आपके एनालाइट की एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज ज्यादा रहेगी, तो फ्लो रेट कितना भी बढ़ाने के बाद उसका फायदा नहीं है. ओके, वो आपका रिटेंशन टाइम डिटरमाइन नहीं करेगा. सो कैरियर गैस फ्लो इज आल्सो नॉट एन ऑप्शन. विल रिमूव दैट और नेग्लेक्ट दैट और एक्सक्लूड दैट ऑप्शन. अभी दो बचते हैं, इंजेक्शन वॉल्यूम एंड कॉलम टेम्परेचर. अभी इंजेक्शन वॉल्यूम आप ज्यादा करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका वहां पे कोई ब्लॉकेज होने वाला है, बिकॉज आपका जो मॉलिक्यूल है, जो एनालाइट है, वो आपका पूरा वेपर फेज में होने वाला है. ओके, तो ट्रेवलिंग के लिए, उसको निकल जाने के लिए इंजेक्शन वॉल्यूम कितना भी हो मैटर नहीं करता है. कॉलम टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट करेगा? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड दिस वन? तो ये हम देखते हैं. जैसे कॉलम टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, ओके, तो हायर टेम्परेचर कंसिडर करोगे तो हायर टेम्परेचर पे क्या होगा, आपका एनालाइट जो है वो फास्टली वेपराइज भी हो जाएगा. ओके, जैसे फास्ट वेपराइज हो जाएगा तो इसके हिसाब से इंट्रैक्शन जो आपका स्टेशनरी फेज के साथ है वो उसका रिड्यूस हो जाएगा. राइट. जैसे वो रिड्यूस हो जाएगा तो आपका रिजोल्यूशन जो है फास्टर हो जाएगा, फिर फटाफट सेपरेट हो जाएंगे. राइट. तो इसी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो कॉलम टेम्परेचर आपका रिटेंशन टाइम को कंट्रोल कर सकता है. सो ऑप्शन डी is the right answer for this question number 27. Let's move to the next number, question number 27. The composition of silica gel G is, again this is very basic straightforward question hai, that you can directly go with the option B, silica gel plus calcium sulfate. Okay, alumina or magnesium sulfate or binder, without binder of the silica gel is not the right answer. Question number 28. According to Van Deventer equation, B stands for what? Okay, so Van Deventer equation आपका क्या है? Column efficiency H is equal to A plus B by mu plus C into the mu. Okay, so यहाँ पे H is indicating the column efficiency, A indicating the average diffusion, B indicating the longitudinal diffusion, and C indicating the non-equilibrium mass transfer. आपका जो mu है आपका मोबाइल फेज का velocity indicate करता है. So yes, based on this equation, the option B
longitudinal diffusion is the right answer for the B in the van der Waals equation. Eddy diffusion is represented by the A, height of the theoretical plates, H जब column efficiency control करेगा ये दिखाएगा, and average velocity is the mu. So option B is the right answer. Okay, let's move to the next question. Question number 29. Two compounds are separated using the TLC. X has an RF value of 0.2 and Y has an RF value of the 0.8. Which compound is more polar? ये हम आइडेंटिफाई करना है. So इसके लिए RF को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा. What is the retention factor is? Okay, ये रिटेंशन फॉर RF का भी हमने सब थोड़े से टाइम पहले इसका फॉर्मूला देखा था. So simply the distance RF is the distance traveled by sample divided by distance traveled by the solvent. कंसिडर करते हैं, सिंपल एग्जांपल है, एक मेरे थ्योरेटिकल प्लेट है, नॉन थ्योरेटिकल प्लेट, मेरी एक सिलिका प्लेट है जिसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है. ओवरऑल सिलिका प्लेट का TLC प्लेट का कंसिडर करो. उसमें मैंने सॉल्वेंट डाल दिया एंड एनालाइट भी स्पॉट कर दिए और वो अभी ट्रेवल करने लगे. जैसे कंसिडर करते हैं कि मेरा जो सैंपल है, सैंपल मेरा 10 सेंटीमीटर तक ट्रेवल किया और जो सॉल्वेंट है वो मेरा 20 सेंटीमीटर तक ट्रेवल किया. तो RF इसमें काफी सिंपल से निकल सकता है. RF विल बी योर 0.5, राइट. अभी जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि कौन सा मोर पोलर रहेगा. अभी सिलिका जेल कंसिडर करोगे तो TLC में सिलिका जेल पोलर है, राइट. मतलब स्टेशनरी फेज इज द पोलर. और दोनों में से एक का RF आ रहा है 0.2, दूसरे का RF आ रहा है 0.8. अभी इससे समझ सकते हैं 0.8 ये कब होता है. सिंपल केस 0.8 कब आएगा, तो मेरा मोबाइल पे आजू बाजू या नियर बाय में मेरा एनालाइट भी ट्रेवल किया रहेगा. तो जस्ट फॉर एग्जांपल टेकिंग केस में ट्रेवल किया है, केस में आपका सोल्यूट इस let me share my screen once again. यस. सो अफिनिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या, आपका सॉल्वेंट ज्यादा ट्रेवल नहीं किया, आपका सोल्यूट ज्यादा ट्रेवल नहीं किया है. सो अगर कंसिडर करो कि मेरा 20 सेंटीमीटर सॉल्वेंट ट्रेवल हुआ है, तो उस केस में मेरा 4 सेंटीमीटर तक ही आपका सोल्यूट ट्रेवल हुआ है. तो इस केस में आपका RF जो आएगा 0.2 आएगा. सो जिस सोल्यूट का RF 0.2 आया वो ज्यादा पोलर हुआ बिकॉज उसकी ज्यादा अफिनिटी है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज. सो कौन सा ज्यादा 0.2 का है, X has the RF value of the 0.2. So option A, X is the right answer for this question. Both are equally polar नहीं हो सकता है क्योंकि RF value दोनों का सेम रहता तो वो होता था. कैन डिटरमाइन नहीं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं. Y is also not the option. Y का जो आपका RF वैल्यू वो ज्यादा है, 0.8 तक है, इसका मतलब वो उसके अफिनिटी मोबाइल फेज को ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टेशनरी फेज. सो ऑप्शन A is the right answer for this question. Let's move to the next question. Question number 30. If solute has an RF value of 0.75 and the solvent front moves to the 20 centimeter, अभी इसी को कंटिन्यूएशन में हम ले सकते हैं प्रीवियस डिस्कशन के. ओके, एंड हाउ फॉर द solute will travel. इसमें क्या दिया है हमें, RF का फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्या है RF का फॉर्मूला डिटेक्शन फैक्टर का? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सैंपल डिवाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मोबाइल फेज. आई विल सिंपल राइट द MP. ओके, तो यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, वी गॉट द वैल्यू ऑफ द RF that is 0.75, right, and we got the solvent front distance. Okay, so solute का हमें निकालना है.
डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोल्यूट हमें निकालना है, हमें सॉल्वेंट का मिला है बिकॉज इट इज ट्रेवलिंग अप टू द 20 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, क्रॉस कैलकुलेशन करो। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट विल बी द 0.75 multiplied by the 20 centimeter will be the your distance traveled by the solute. So based on this calculation, you will get the answer as a 15 centimeter. So option 10 centimeter का आया तो 20 centimeter का इसका आगे 0.5 आएगा. This is not right option. 12 centimeter नहीं और 8 centimeter भी नहीं. We are getting the answer as a 15 centimeter. Option B is the correct answer for this question. Okay. So yes, we are done with our MCQs. If you have any doubt, you can please ask me any question. Otherwise, we can stop here in the meeting. All questions are very basic questions on the HCGC as well as TLC and purple chromatography. Okay, यहाँ पे कोई भी question आप attempt करोगे तो सबसे पहले try to remove the incorrect option. Then you will automatically get the right answer itself in the attempting. Okay. So no problem. We can stop here. Thank you, everyone. Thank you, sir.